नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite Quranic religious program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathore. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 7 to 11 of the 24th part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, so that God's blessings may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم. Dear viewers,
You are listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. الذين لا يؤتون الزكاة لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses of Al-Quran. So this is very important segment, because in which we give you translations, recitations, as well as explanations of the Holy Quran. So keep on watching this program and stay with us. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. In Urdu, जो ज़कात
और वो आखिरत के मुनकिर ही रहते हैं। In English, who do not pay the poor due zakat, and they deny the hereafter. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون। बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो मुनक़ते नहीं होगा। In English, undoubtedly, those who believe and do good works, there is for them endless reward. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا। इन उर्दू, आप इनसे पूछिए, क्या तुम लोग इनकार करते हो उस जात का जिसने पैदा फरमाया जमीन को 2 दिन में और ठहराते हो उसके लिए मद्दे मुकाबिल? Say you, do you indeed disbelieve in him who made the earth in 2 days? And do you set up equals to him? ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين। वो तो तमाम जहानों का मालिक है, उसका मद्दे मुकाबिल कौन हो सकता है? That is the Lord of the entire world. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين। और उसने ही बनाए हैं जमीन में गड़े हुए पहाड़ जो उसके ऊपर उठे हुए हैं, और उसने बड़ी बरकतें रखी हैं इसमें, और अंदाजे से मुकर्रर कर दी हैं इसमें ग़िज़ाएं हर नौ के लिए 4 दिनों में। इनका हुसूल यकसा है तलबगारों के लिए। And he placed therein anchors of mountains rising above it, and put blessings therein, and ordained therein provisions for its inhabitants. All this in 4 days, complete. This for the inquirers. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم
सुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन। फिर उसने तवज्जो फरमाई आसमान की तरफ। वो उस वक्त महज धुआं था। पस फरमाया उसे और जमीन को कि आ जाओ तामील हुक्म और अदाए फर्ज के लिए, खुशी से या मजबूरन। दोनों ने अर्ज की, हम खुशी खुशी दस्त बस्ता हाजिर हैं। Then he turned towards the heaven, and it was a smoke. Then he said to it and to the earth, Come both of you willingly or unwillingly. They both submitted. We have come willingly. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में बताया और हुक्म दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि मैं बशर होने में तुम्हारी तरह हूँ। अब ये आया मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी अहम आया मुबारका है, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आयात मुतशाबहात में से है। और आयात मुतशाबहात कुरान में तीन तरह की आयात या हुरूफ होते हैं, हुरूफ मुक़त्तात, मुतशाबहात और मुहकमात। मुहकमात जो होते हैं हमें उन पर अमल करना होता है। तो ये आयात मुतशाबहात के मुताल्लिक़ कुरान कहता है, हुन्ना उम्मुल किताबी व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, कि अगर कोई इन आयात में गौर फ़िक्र करता है तो वो फितनों में मुब्तला हो जाता है। हमारे यहाँ भी इन आयात पर फितने बर्पा हो रहे हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है बशरुम मिस्लुकुम, के बशर होने में तुम्हारी तरह हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अना मिस्लुकुम, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, ये कहीं नहीं कहा। हाँ, बशर होने में तुम्हारी तरह हूँ। अगर नबी फरिश्ता बनकर या किसी और अपनी अल्लाह ने उनकी जो तख्लीक की थी ओरिजिनल नूर की सूरत में, अगर उस सूरत में आते, लोग समीअना वासीना के एक राह फरार इख्तियार कर लेते कि जनाब हम आपकी बात नहीं समझ सकते। अल्लाह ने लिबास बशरियत पहना कर भेजा। और फिर देखिए दूसरे अंबिया किराम के मौजज़ात थे, ज़मीनी मौजज़ात थे। हमारे नबी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मौजज़ा अता फरमाया था, चांद और सितारे आपके खिलौने थे। जब आप उंगली का इशारा करते चांद दो लख्त हो जाता था, सूरज को इशारा करते थे उल्टे कदमों दौड़े चला आता था। और वाक़या मेराज तो कितना अज़ीमुश्शान वाक़या है। चुनाचे जब पिछले अंबिया किराम के ज़मीनी मौजज़ात को देख कर लोगों ने उन्हें अंबिया को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो अब डर ये था कि नबी के मौजज़ात तो आसमानों पर भी थे, तो लिहाजा इनको अल्लाह ही ना बना दे, खुदा ही ना बना दे। लिहाजा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब ये है, सही मानों में याद कर लीजिए कि मैं खुदा ना होने में तुम्हारी तरह हूँ। जिस तरह तुम खुदा नहीं हो इस तरह मैं भी खुदा नहीं हूँ। जिस तरह तुम अल्लाह नहीं हो इस तरह मैं भी अल्लाह नहीं हूँ। जिस तरह तुम मखलूक हो इसी तरह मैं भी मखलूक हूँ। यानी खुदा ना होने में मैं तुम्हारी तरह हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि नबी मुकर्रम चलने फिरने में, खाने में, उठने में, बैठने में, इल्म में, नॉलेज में, हर चीज़ में हमारी तरह नहीं जनाब। अब अहादीस मुबारक देखिए, खुद में और नबी में कीजिए, क्या किसी इंसान पर वही आती है? नहीं जनाब। ये वही तो इतनी अजीम चीज़ है, फ़कत अंबिया इकराम पर नाजिल होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, हम पर 5 है। आपकी 11 अज़वाज मुतहरात, हमें 4 का हुक्म दिया गया। आप सोमे विसाल रखा करते थे, 3-3, 4-4 दिन के रोज़े रखा करते थे। सहाबा इकराम तकलीद में उन्होंने भी रोज़ा रख लिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन गिर गिर कर पढ़ने लगे, बिल्कुल नकाहत तारी हो गई। हुजूर ने पूछा क्यों ऐसा किया है? कहा इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह, आप रोज़ा रखते हैं, हमने भी सोमा विसाल रख लिया है, 3 दिन का रोज़ा रख लिया है। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, क्या तुम खुद को मेरी मानी समझते हो? अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्क़ीनी, मियाँ मैं तो अपनी रातें अपने रब के पास गुजारता हूँ, वही रब मुझे खिलाता है और वही रब मुझे पिलाता है। तो गौर कीजिए, क्या हम नबी के मिसल हो सकते हैं या नबी हमारी मिसल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। हाँ, खुदा ना होने में नबी में और हम में मुमासिलत ज़रूर है, लेकिन नबी की फजीलतें इतनी है कि मुमासिलत बिल्कुल नाम की रह जाती है। मुमासिलत पर ईमान ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक ग़ुलाम की ज़बान जब भी खुले तो अपने नबी की फजीलत में खुलनी चाहिए। यही
गुलामों को ज़ेब देता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन फरमुदात को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।